देश में 16वीं जनगणना को लेकर एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, जब गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना में जाति शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इसी को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि क्या उन्होंने एक बार फिर जाति जनगणना को लेकर अपना रुख बदल दिया है। दरअसल जयराम रमेश ने कहा कि अधिसूचना में कुछ भी नया नहीं है, केवल पहले से ही कही गई बातों को दोहराया गया है। उन्होंने कहा कि ये बात पहले ही 30 अप्रैल को घोषित की जा चुकी थी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में जनगणना का काम अक्टूबर 2026 से शुरू किया जाएगा, जबकि देश के बाकी हिस्सों में ये मार्च 2027 में शुरू होगा। रमेश ने सवाल उठाया कि जब ये घोषणा पहले ही की जा चुकी थी तो इस अधिसूचना को इतनी जोर शोर से प्रचारित करने की क्या जरूरत थी। उनका कहना है कि इस अधिसूचना में कहीं भी जाति जनगणना का उल्लेख नहीं है और न ही ये बताया गया है कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे या किन सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को शामिल किया जाएगा। उन्होंने इसे केवल एक हेडलाइन बनाने वाला कदम बताया और कहा कि सरकार ने केवल प्रचार पाने के लिए ये अधिसूचना जारी की है, जबकि वास्तव में इसमें कोई नई या ठोस बात नहीं कही गई है। जयराम रमेश ने कहा कि हम लगातार ये मांग करते रहेंगे कि देश भर में तेलंगाना मॉडल को अपनाया जाए, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और जातीय आंकड़ों का समावेश हो। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयानों का हवाला देते हुए कहा कि उनका रुख बार बार बदलता रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि 28 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना की मांग करने वालों को अर्बन नक्सल कहकर उनकी आलोचना की थी और उससे पहले 23 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर ये साफ कर दिया था कि वो जाति आधारित जनगणना नहीं कराएगी, क्योंकि ये सरकार की नीति के खिलाफ है। BJP withdrew support to the VP Singh government on the Mandal Commission in August of 1991. BJP supported the National Front government. And the BJP withdrew the support when VP Singh as Prime Minister announced the implementation of the Mandal Commission. And they started the Kamandal agitation to counter the Mandal agitation. So let's not get into this history. I can also go into the history of how the RSS opposed the Constitution of India beginning November 1949. How Yogi Adityanath has opposed reservations. How RSS leaders have opposed reservations. How the RSS leader Mohan Bhagwat has spoken against reservations. So let's keep history aside for the time being. We have enough ammunition from our side. According to the Constitution of India, 7th schedule, census is the responsibility of the central government. It comes in the central list. Now, if the center does not want to carry out the census as given in the Constitution, there is no alternative left for states except to do caste surveys. So various states have done caste surveys. Telangana has done one, Karnataka has done one. Now, Bihar has done one. Now, the point is, the responsibility is that of the central government. And the Prime Minister has consistently opposed the caste census. On the 28th of April 2024, he called all those wanting a caste census urban nexals. This was a television interview he gave during the election campaign. He called the Congress party urban Naxals. Then, they filed an affidavit in the Supreme Court on the 21st of September 2021. They filed an affidavit saying that we are against a caste census. We have no intention of carrying out a caste census. Then there is a question that is asked by Raksha Khandse. She's a member of the Council of Ministers now. She asks a question. This was on 20th of July 2021. And the answer to the question given by the minister concerned is that we are opposed to a caste census, that we have no intention of carrying out a caste census. Now, today's Gazette notification says only census will be done. इसके साथ ही लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में भी केंद्र सरकार ने साफ कहा था कि वो जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है, लेकिन 30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने अचानक रुख बदलते हुए घोषणा कर दी कि आगामी जनगणना में जाति गणना भी की जाएगी। जयराम रमेश ने इसे विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के निरंतर दबाव का परिणाम बताया और कहा कि सरकार को मजबूरन ये निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बार बार केवल घोषणा करती है, लेकिन उसकी नीयत और कार्य योजना को लेकर गंभीरता नहीं दिखती। उन्होंने ये भी सवाल किया कि आखिर इस अधिसूचना में ना तो जाति का उल्लेख किया गया और न ही ये बताया गया कि जनगणना किन मुद्दों को कवर करेगी। केवल ये कह देना कि जनगणना होगी पर्याप्त नहीं है।
उन्होंने कहा कि सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि जाति आधारित आंकड़ों को किस रूप में और कैसे एकत्र किया जाएगा। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा है कि जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है कि 16वीं जनगणना वर्ष 2027 में की जाएगी। इसके तहत देश के पहाड़ी और बर्फ से ढके क्षेत्रों में जहां जनगणना कार्य कठिन होता है, वहां ये काम 1 अक्टूबर 2026 से शुरू किया जाएगा, जबकि शेष भारत में ये कार्य 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। जनगणना में अत्याधुनिक तकनीकी प्रयोग की बात पहले ही की जा चुकी है, जिसमें लगभग 34 लाख गणनाकार और पर्यवेक्षक तथा करीब 1.3 लाख अधिकारी मोबाइल आधारित डिजिटल उपकरणों के साथ जनगणना कार्य में जुटेंगे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या इसमें जाति आधारित जानकारी को भी शामिल किया जाएगा या नहीं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 30 अप्रैल को कहा था कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति के निर्णय के अनुसार आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल किया जाएगा। लेकिन अब जब आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है तो उसमें इस विषय पर कोई भी स्पष्टता नहीं है, जिससे राजनीतिक सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मुद्दे को नहीं छोड़ने वाली और लगातार दबाव बनाती रहेगी कि जाति गणना को न केवल शामिल किया जाए बल्कि उसे पारदर्शिता और वैज्ञानिक ढंग से किया जाए। ये स्पष्ट है कि इस अधिसूचना ने जनगणना की शुरुआत को लेकर समय रेखा तो तय कर दी है, लेकिन इसके उद्देश्य और दायरे को लेकर अब भी कई सवाल अनुत्तरित है। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है और क्या वाकई जाति गणना को ठोस रूप में लागू करने की दिशा में कोई कदम उठाया जाता है या नहीं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।